Good evening, students. Am I audible? Yes, clear? Can you hear me clearly? Okay, fantastic. Okay, so how is everyone? All are good? Health wise? All fine? Yes? Okay, okay, fine. So, coming back to what we have started last time. Last time we have started with sonography, right? Is my screen shared on your end, everyone? This is good. This resolution. Everybody can see? Okay, fantastic. All right. So basically, last time we have started with sonography, correct? Yes. So sonography, now before sonography, हमने देखे थे sonar waves. What are sonar? Okay. Sonar are nothing but sound navigation and ranging. This is a device which captures sound, the navigation of sound waves using a transmitter and a receiver. ठीक है, इसके ऊपर हमने ये भी देखा था सोनोग्राफी करके. नाउ सोनोग्राफी टेक्नोलॉजी यूजेस अगेन, ये भी एक अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज करती है. अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स टू जनरेट इमेजेस ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी. ठीक है, दिस इज यूजफुल इन फाइंडिंग आउट द कॉज ऑफ स्वेलिंग, इन्फेक्शन, पेन एक्सेट्रा. अगर इंटेस्टाइन में कोई इन्फेक्शन है, कोई स्वेलिंग है, तो ये सब फाइंड आउट करने के लिए सोनोग्राफी यूज की जाती है. कुछ चीजें जब पेट के अंदर या फिर बॉडी के अंदर हाई लेवल पे होती है, ओके, जिसे हम नॉर्मल रिपोर्ट से डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, वो टाइम पे सोनोग्राफी का इस्तेमाल किया जाता है. ओके, आई होप सो फार इट इज क्लियर विथ एवरीवन. यस, एवरीबडी क्लियर सो फार? एक सेकेंड. ओके, दिस रेजोल्यूशन इज गुड विथ एवरीवन. या, सो बेसिकली, okay, so basically now the infection, okay, then the pain inside the body, organs कहीं पे भी, etc. The condition of the heart भी find out करने के लिए सोनोग्राफी का ये टेस्ट किया जाता है. ठीक है, so the state of heart after a heart attack as well as the growth of fetus inside the womb of a pregnant woman are studied using this technique. You can see this image here. This is sonography machine. Okay, there is one, this, what do you call it as a, yes, this is called as a probe, probe, probe. ठीक है, तो स्किन पे जेल लगाते हैं, इस प्रोब को उसके ऊपर घुमाते हैं और इस तरह की इमेज मिलती है, और वो इमेज इधर मॉनिटर की स्क्रीन पे डिस्प्ले होती है. इज दैट क्लियर एवरीबडी? इज दैट क्लियर सो फार? ओके, ये पूरी की पूरी मशीन जो है अल्ट्रा वेव्स पे चलती है, अल्ट्रासोनिक वेव्स पे चलती है. Okay, now here, this technique makes use of probe and a gel. The gel is used to make proper contact between skin and the probe so that full capacity of the ultrasound can be utilized. Since it is ultrasound, skin और probe के बीच में full contact होना चाहिए ताकि आपको clear image मिले. ओके, तो जेल का इस्तेमाल करके ये प्रोब वहां पे रब होता है और उसकी इमेज मिलती है. इज दैट क्लियर एवरीवन? I hope I'm making sense. Okay, 1 minute. Huh? I'll show you something. 1 minute. Uh, all right. So basically, I'll show you one image here.
तो इस इमेज में यू विल सी हाउ दिस प्रोब इज वर्किंग. ठीक है, 1 minute, आई विल जस्ट शो यू. 1 minute, huh? Yes, there you go. I haven't added a title to this, just for your understanding this is. Okay, sharing my screen again. One minute. There you go. Can you see this, everyone? Everyone, can you see this? Is this visible? इस तरह का sonography. Yes? 1 minute. Is this visible now? एक minute. 1 minute, class. हाँ, can you see this moving? जब ये प्रोब जेल के ऊपर ऐसे रब होता है, ठीक है, तो अंदर की इस तरह से स्क्रीन दिखाई देती है. इट इज वेरी, नाउ पीपल, व्हाट पीपल डू, they usually go to doctor to identify the gender, which is actually not correct. Okay, so ये gender identify करने जाते हैं, which is actually not correct. Okay, so सोनोग्राफी में बच्चा इस तरह से दिखता है, उसका जेंडर आइडेंटिफाई नहीं होता है. ठीक है, unless it reaches certain age. Is that clear, everyone? Okay, चलो, can we go back to the textbook? Okay, there we go. Huh. All right. So here, that this technique makes use of a probe and a gel. The gel is used to make proper contact between the skin and the probe so that full capacity of the ultrasound can be utilized. The gel is applied to the skin outside the internal organ to be studied. High frequency ultrasound is transmitted inside the body with the help of probe. The sound reflected from the internal organ is again collected by the probe and fed to the computer using which generates images of the internal organs. As this method is painless, it is increasingly used in medical practices for correct diagnosis. Is that clear? ठीक है, जो भी हमने इमेज अभी देखी थी, वो क्या करता है, प्रोब जो है यहाँ से अल्ट्रासाउंड सेंड करता है. प्रोब के अंदर ही ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों भी प्रेजेंट होते हैं. जब ये अल्ट्रासाउंड सेंड करता है, तो हमारी जो इंटरनल ऑर्गन है या अंदर वूम में बेबी है, उसके ऊपर वो अल्ट्रासाउंड गिर के रिफ्लेक्ट बैक होते हैं. जब ये रिफ्लेक्ट बैक होते हैं तो प्रोब ही कलेक्ट करता है और ये कंप्यूटर को ये डेटा फीड कर देता है. और जो अभी हमने इमेज देखी थी, वो कंप्यूटर के ऊपर डिस्प्ले हो जाती है. इज दैट क्लियर, एवरीवन? प्रोब इज दिस. ओके, इट इज जस्ट लाइक अ माउस. हमारे कंप्यूटर का माउस कैसा होता है, यू क्लिक, यू गो ऑन दैट पर्टिकुलर कॉलम एंड क्लिक. तो यहाँ पे क्लिक करने की जरूरत नहीं होती. इज जस्ट लाइक ए एक्सरे मशीन. ये जहां जहां घुमाएंगे बॉडी पे, उसका यहाँ पे ट्रांसमिटेंस होगा. दिस इज कॉल्ड एज अ प्रोब. इट इज जस्ट लाइक अ माउस. ओके, ठीक है. नाउ कमिंग डाउन, developments in the science have led to advances in technology which have helped us to make much progress. However, every coin has two sides, and misuse of the science has had serious consequences on human life. Okay, the sonography technique can help to follow the growth, well-being of unborn baby, but increasing incidence of female feticide as a result of discrimination between the girl and the boy child is example of grave misuse of this technique. Okay, female feticide is now a cognizable offense under PNDT Act. Okay, so basically लोगों ने डेवलपमेंट की साइंस का फायदा भी लिया है, उसका गैर फायदा भी लिया है.
जैसे साइंस के एडवांसेस डेवलप होने लगे, पहले कैसे होता था, बहुत पहले, ओके, पहले कैसे होता था कि जब पेट के अंदर कोई रीजन से अगर बेबी मर गया पेट के अंदर ही, ओके, वूम के अंदर ही, तो मदर को पता नहीं चलता था जब तक बेबी बॉर्न ना हो या फिर मदर खुद बीमार ना पड़े। ओके, तो अभी क्या हुआ, इस सोनोग्राफी टेक्निक ने बेबी हेल्दी है या नहीं ये बताने के लिए यूज दिया है हमें। पर लोग क्या करते हैं, लोग इसका जेंडर लोग इसका जेंडर फाइंड आउट करते हैं। अगर बॉय है तो उसको ग्रो करेंगे, अगर गर्ल चाइल्ड है तो पेट के अंदर ही मार देंगे। ओके, सो ये जो है ये पहले बहुत होता था, बट नाउ इट इज कॉग्निजेबल क्राइम। कोई भी डॉक्टर अभी बताएंगे नहीं whether the baby is male or a female. Okay, now here, so far it is clear everyone, everybody clear so far? Okay, now talking about human ear. ह्यूमन ईयर में एक अलग अलग लेयर्स होते हैं। दिस इज योर एक्सटर्नल ईयर, ओके, जिसे आउटर ईयर बोलते हैं या पिना बोलते हैं। ओके, इसके अंदर एक ऑडिटरी कनाल है जिससे आपकी आवाज अंदर जाती है, कान के अंदर जाती है। ठीक है, यहाँ पे आप अपने ईयरफोन्स लगाते हो। ठीक है, ये पासेज के ऊपर ये एरिया के अंदर ईयरफोन नहीं जाने चाहिए। ठीक है, आपके ईयरफोन यहाँ तक होने चाहिए जहां से पर्पल, डार्क पर्पल एरिया चालू होता है, उसके अंदर ईयरफोन नहीं जानी चाहिए। ओके, ईयरफोन आपके वैक्यूम क्रिएट करते हैं। नाउ दिस इज टिम्पैनिक कैविटी। ये जो पर्पल कलर की है इसे बोलते हैं टिम्पैनिक कैविटी। इसके अंदर कैन यू सी दिस नेल लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एज ए ईयर ड्रम। ये जो कान का पर्दा बोलते हैं ना हम, एवरीबडी नो कान का पर्दा, दिस इज कान का पर्दा, ईयर ड्रम। इसके आगे the chain of three bones, this is chain of three bone, one bone, two bone and three bone, ये तीनों का चेन है ये। then here semicircular canal, यहाँ पे दो semicircular canal है। ओके, ये चेन ऑफ थ्री बोन्स के एंड में स्टेपीज है। यहाँ स्टेपीज के पीछे साइड कॉकलिया है। ओके, और इस कॉकलिया को कहा ज्वाइन किया है, इनर ईयर। इनर ईयर जो है आगे एक्सटेंड होके, ओके, ये जो है मिडिल ईयर में है, कॉकलिया इनर ईयर में है, और आगे ये एक्सटेंड होके यूस्टैचियन ट्यूब बनता है जो आपके ब्रेन को जाके कनेक्ट करता है। ओके, लेट्स स्टडी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ईयर्स। शैल वी गो अहेड एवरीवन? यस, द ईयर इज एन important organ of human body. We hear sounds because of our ear. When sound waves fall on the eardrum, it vibrates. These vibrations are converted into electrical signals which travel to the brain through nerves. The ear can be divided into three parts: outer ear, middle ear, and inner ear. This is outer ear, this is middle ear, okay, and this is called as cochlea, is called as inner ear. Okay, now the outer ear collects the sound waves and passes them through the tube or a cavity in the middle ear. Outer ear क्या करता है, साउंड वेव्स को कलेक्ट करके मिडल ईयर को ट्रांसफर करता है। ठीक है, नाउ मिडल ईयर क्या करता है, देयर इज अ थिन मेम्ब्रेन इन द कैविटी ऑफ द मिडल ईयर कॉल्ड एज ईयर ड्रम। दिस इज ईयर ड्रम, दिस इज थिन कैविटी। ओके, पर्दा एक पतला सा टिश्यू का स्ट्रक्चर है बट वेरी डेलिकेट। ठीक है, नाउ middle ear called as eardrum. When a compression in a sound wave reaches the eardrum, the pressure outside it increases and it gets pushed inwards. जब ये sound अंदर जाता है, that time what happens? Okay, that time what happens? The pressure on the eardrum increases, okay, and it pushes it inwards. The opposite happens when the rarefaction reaches there.
Compression मतलब high sound waves, rarefaction मतलब low sound waves. The pressure outside decreases and membrane gets pulled inwards. जब rarefaction होता है तो बाहर का प्रेशर इंक्रीज होता है और अंदर का डिक्रीज होके मेम्ब्रेन अंदर पुल होता है. Thus, sound waves causes vibrations of the membrane. इसलिए ईयर ड्रम आगे पीछे होता है. जब भी आप स्पीकर के सामने खड़े होते हो, दैट टाइम इफ यू रिमेम्बर, आपको आगे पीछे से फील होता है, पता है ईयर ड्रम पे प्रेशर फील होता है. ओके, लाउड म्यूजिक में खड़े होते हो, बारात में खड़े होते हो, शादी के टाइम पे, फंक्शन के टाइम पे. यस, होता है. एक्सपीरियंस किया है कभी? Sorry, I went on a mute. Okay, can you hear me, guys? Okay, okay. मैं क्या बोल रही थी? मैं अकेले ही बात कर रही थी. Anyways, again I'm repeating, we were here. Okay, the opposite happens when a rarefaction reaches there, the pressure outside decreases and membranes get pulled outwards. Thus, sound wave cause vibration of membrane. What I was saying that आप लोग कभी कोई फंक्शन में गए हो, दैट टाइम आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, अगर आप ज्यादा देर लाउड साउंड में खड़े रहते हो या लाउड साउंड के इर्द गिर्द रहते हो, तो आपको वो वाइब्रेशंस एक टाइम तक, आप साउंड से भी दूर गए तो एक टाइम तक आपके कानों पे पड़ते रहेंगे वाइब्रेशन. पता है, कभी कभी ऐसे लगता है यार कान में कुछ बज रहा है, अभी भी कुछ बज रहा है, मोशन फील होता है. राइट? एम आई करेक्ट? हुआ है कभी किसी को? मुझे हुआ है. यस, एग्जैक्टली, बिकॉज ऑफ दिस ईयर ड्रम, दिस थीन कैविटी, दिस थिन टिश्यू, इट कीप्स ऑन कंप्रेसिंग रेयर फ्रैक्टिंग. तो उसकी वजह से होता है. दोज हैव नॉट एक्सपीरियंस, नो वरीज. बट कभी अगर आप गए ऐसे कोई फंक्शन में जहाँ पे लाउड म्यूजिक हो, पर्पसली जाके खड़े मत होना वहां पे, बट इन केस अगर आप खड़े हो तो एक्सपीरियंस करना एंड लेट मी नो. This was all about middle ear. When we are talking about inner ear, the auditory nerve connects the inner ear to the brain. Very important. Inner ear is a portion of the ear जो डायरेक्टली ब्रेन से कनेक्ट करते हैं. तो जितने सारे नर्व्स होते हैं यहाँ के, वो डायरेक्टली ब्रेन को कनेक्ट करते हैं. द इनर ईयर हैज structure resembling the shell of a snail. If you can see this, it resembles like a shell of a snail. Snail जो होता है गोगल गाय, उसके ऊपर जो शेल होता है उसके जैसा दिखता है. It is called as cochlea. What it is called as? Cochlea. Now this cochlea class receives the vibration from coming back from the membrane and convert them into electrical signal. यहाँ से जो वाइब्रेशन यहाँ पे जाते हैं, यहाँ से जो वाइब्रेशन यहाँ जाते हैं कॉक्लिया पे, they are converted to electrical signals and then they are sent further to the brain. ओके, डायरेक्टली वाइब्रेशन ब्रेन तक नहीं पहुंचते हैं. कॉक्लिया क्या करता है, वो वाइब्रेशन को रिसीव करता है. ओके, और उस वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में ब्रेन तक भेजता है. ओके, और ये ब्रेन जो है इसको नर्व में इंपल्स करते हैं एंड ब्रेन एनालाइजेस दिस सिग्नल्स. हमारी ब्रेन इस सिग्नल को रीड करती है और रीड करके हमको डिकोड करके थॉट्स की प्रोसेस में देती है. इज दैट अंडरस्टूड बाय एवरीबॉडी? यस. ऑलवेज रिमेंबर, ear is an important sensory organ. Sticks or the other pointed objects should not be put inside the ear for cleaning it. If you feel your ear has been completely jammed, you can go and visit the doctor, ENT doctor. Okay. Also, one should not hear very loud music using earphones. It may cause grave injury to the eardrum. Is that clear, everyone? Class? Have I made it easy?
Yes, let's see some solved examples so far. Can we go ahead with solved example? Okay, before we go ahead with solved example, I would like to show you something. 1 minute. Um, 1 minute. One minute. Um, ओके, ये जो कॉकलिया इम्प्लांट का जो बात कर रही थी ना मैं, इट विल लुक लाइक दिस. 1 minute. Okay, there we go. I think this is good. One minute. Okay, I'll share this. अभी ये कंपैरिजन और रेयर फ्रैक्शन दोनों भी आपको यहाँ पे दिखेंगे. Can you see everyone? Can you see this compression and rare fraction? How this eardrum is banging and it is sending signals to the cochlea inside. Everybody can see this is your eardrum. This is the triple वाला bone जो हमने देखा था टेक्स्ट बुक में. करेक्ट. एंड दिस इज योर कॉकलिया. इस तरह से दिखता है ये कॉकलिया जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में ब्रेन को भेजता है. यस, एवरीबडी कैन सी. कैन यू सी स्टूडेंट्स? 1 minute, I'll reshare. Now can you see everyone? Shared and now it is clear. Everyone. Yes. Yes. ठीक है. So this is compression and rare fraction. ठीक है. ये आगे पीछे होके it is creating a nice E. ठीक है. Let us go ahead. Coming back to the textbook over here. Now in textbook, how long will it take for a sound wave of 25 centimeter wavelength and 1.5 kilohertz frequency to travel a distance of 1.5 kilometers? Okay, हमारे पास अभी क्या है यहाँ पे? हमारे पास फ्रीक्वेंसी है. ठीक है. और हमको क्या पूछा है कि कितना टाइम लेगा ये साउंड वेव इतने में पहुंचने के लिए. वी नीड टू फाइंड आउट टाइम. सबसे पहले हम क्या करेंगे? फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूला में जाएंगे. फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1.5 किलो हर्ट्स. ठीक है. उसको हम क्या करेंगे? हर्ट्स में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमारा वेवलेंथ मीटर में है. ठीक है. वेवलेंथ को हमको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, फ्रीक्वेंसी को हर्ट्स में कन्वर्ट करना है और डिस्टेंस को हमें किलोमीटर का मीटर में कन्वर्ट करना है. After converting this into equal quantities, what we are going to do? We are going to use the formula of velocity of sound is equal to frequency into wavelength. तो हमको velocity of sound मिल जाएगा. Agreed? Velocity क्यों ले रहे हैं हम लोग? क्योंकि हमको time find out करना है. So velocity is equal to nu by lambda 1.5 into 10 raised to 3 into 0.25. So if you multiply this, you get 0.375 into 10 raised to 3. 375 meters per second. ये हमारी velocity of sound हो गई. After you get your velocity of sound, you have to go in the formula of time. Why time? Because हमने velocity find out की है. Velocity के formula में time और distance आता है. So we will take velocity is equal to distance into time. Okay, तो velocity को हमने divide कर लिया. Distance है हमारे पास, velocity है. Time is equal to distance upon velocity. Understood everybody? Everybody understood so far? Yes? No, no, yes? Yes, okay.
तो हमने टाइम, डिस्टेंस हमारे पास है, इधर फाइंड आउट किया था ये वाला, ठीक है। वेलोसिटी जस्ट हमने फाइंड आउट करी, तो लेट्स टेक दिस अपॉन दिस। सो यू गॉट s अपॉन v इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻³ अपॉन 375, ठीक है। अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे यू विल गेट 1500 अपॉन 375 विच इज इक्वल टू 4 सेकेंड। So sound wave takes 4 seconds to travel distance of 1.5 kilometers. Is that clear with everybody? Everyone clear? Easy? अगर टाइम पूछा है तो ऐसा फॉर्मूला लेना है जिसमें टाइम आता हो, ठीक है। Let us go to example number 2. Ultrasonic waves are transmitted downwards into a sea with the help of sonar. The reflected sound is received after 4 seconds. What is the depth of the sea at that place? Okay, we need to find the depth of the sea. Before that, what is the data given? Velocity of sound in sea water is equal to 1550 meter per second. Okay, so what we are going to do, we are going to use this velocity of sound wave in the sea water. Okay, so velocity of sound in the sea water is equal to 1550 meter per second. Now time for echo to be heard is 4 seconds. What is reflection? Reflected sound is nothing but time for echo. जो echo हुआ आवाज है, that is reflected sound. Time taken by sound wave to reach the bottom of the sea is equal to 4/2. Why 4/2? क्योंकि 4 सेकेंड जो है जाने और आने का दोनों का टाइम है। सो जब हम 4/2 करेंगे तो हमको जाने का टाइम मिलेगा, सिंगल वन साइड टाइम मिलेगा। सो वी गॉट 2 सेकेंड। नाउ वी हैव वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, सो हमारे पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू दिस मच। देन वी हैव टाइम, टाइम पीरियड भी है हमारे पास 2 सेकेंड्स, ठीक है। नाउ दिस इज मीटर पर सेकेंड, दिस इज सेकेंड, दोनों का इक्वल क्वांटिटी है। कन्वर्ट करने की जरूरत है क्या? हमें कन्वर्ट करने की जरूरत है? यस, दोनों के यूनिट्स को देख के कन्वर्ट करने की जरूरत है क्वांटिटी को? नो, राइट, दे ऑल आर इन SI यूनिट, सेम यूनिट है। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमारे पास डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, सो वी विल यूज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। Velocity into time is equal to 3100 meters. So this 3100 meter is the depth of the sea. Is that clear, everyone? Easy to understand? Can I go ahead? Everybody easy to understand? कोई डाउट है? Okay. Coming to example number 3. Now example number 3 में क्या दिया है? Sound waves of wavelength 1 centimeter. कितना है wavelength? 1 centimeter. Have a velocity. Velocity कितना है? 340 meter per second in air. What is the frequency? सबसे पहले हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, और दूसरी बात क्या है, ये भी पूछा गया है क्या ये साउंड ह्यूमन ईयर के लिए ऑडिबल होगा। नाउ ये कभी पता चलेगा जब हम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। एम आई करेक्ट? सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गिवन डेटा लिखते हैं और फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं। वेवलेंथ है मेरे पास 1 सेंटीमीटर, सो 1 सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करती हूँ इट विल बी 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। ठीक है। वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना है? हमारे पास वेलोसिटी ऑफ साउंड है 340 मीटर्स पर सेकेंड। मीटर्स पर सेकेंड और मीटर दोनों इक्वल क्वांटिटी हो गए। अभी कन्वर्ट हमने वेवलेंथ को किया, दोनों इक्वल क्वांटिटी हो गए। यस, सो देयरफॉर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू न्यू इंटू लैम्बडा, दैट इज फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्बडा। हमारे पास फ्रीक्वेंसी नहीं है, हमारे पास न्यू की वैल्यू नहीं है, सो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कब फाइंड आउट करेंगे, जब हम वेलोसिटी अपॉन लैम्बडा करेंगे। सो वेलोसिटी कितनी है 340 अपॉन 1 इंटू 10⁻²। ओके, 340 को एज इट इज रखेंगे, 10⁻² को ऊपर लाएंगे तो इट विल बिकम 10⁻+2।
Hence frequency is equal to 3400 34,000 हर्ट्स. क्या किया 34,000 हर्ट्स के लिए? 340 मल्टीप्लाई बाय ये दो जीरोस डाल दिए, ऐड कर दिए. Did we get 34,000 hertz? Now this frequency is higher than 20,000 hertz, and therefore this sound cannot be heard by human ear. Can anybody tell me whether this frequency will form in ultrasound or infrasound? Looking at the frequency, in which category it is going to fall? Ultrasound or infrasound? Everyone? Yes? Yes. Students, are you there? Parth, Nidhi, Manish, are you there? Yes. My question is that अभी हमने ये frequency find out करी है, ठीक है? तो ये जो frequency मिली है, it is 34,000 hertz. Since it is said that 20,000 hertz के ऊपर की frequency हमें सुनाई नहीं देती है, not audible to human ear, ठीक है? So I want you to categorize this 34,000 hertz into either infrasound या ultrasound. In which category will it belong? ये अल्ट्रासाउंड की कैटेगरी में जाएगा या इंफ्रासाउंड? कुठल्या कैटेगरी मध्ये जाणार? Are you sure, Nidhi? Are you sure? Infrasound? How many in the favor of infrasound? Ultrasound. Parth is saying ultrasound. Yes, anybody else? Infra or ultra? Okay, I'll take you back to the PPT. Last time what we have seen. Can you see this? Below 20 hertz is infrasound. 20 to 20,000 hertz is audible sound. And over 20,000 hertz is ultrasound. So अभी इसको देख के बताओ ये कौन से कैटेगरी में आएगा? Which sound is this? Yes, students. Which category is this? Perfect. Ultrasound. ठीक है? Now, sonar technology was first developed during World War I to detect enemy submarines. This technology can be used in air also. ठीक है? एरोप्लेन के लिए यूज करते हैं तभी भी सोनार टेक्नोलॉजी यूज करते हैं. In fact, bats use this technique to detect obstacles in their path so that they can avoid them and fly freely even in the dark. ठीक है? So ये जो सोनार वाली टेक्नोलॉजी इट इज मोस्टली यूज बाय द बैट्स. उनसे हमने ये टेक्निक सीखी है और हमने अपनी डेली लाइफ में जगह जगह पे अप्लाई करी है, वेदर इट इज अ marine science or whether it is aeronautics. With this, we are completing our chapter. Does anybody has a doubt here? Anyone has a doubt? किसी को कुछ पूछना है? Yes, I'll just quickly recap everything. Just quick recap कर लेते हैं, then we'll stop here. Okay? Okay, no doubts. ठीक है. स्टडी ऑफ साउंड में हमने पढ़े थे साउंड वेव्स, वेलोसिटी ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ह्यूमन ईयर, ऑडिबल साउंड, इंफ्रासाउंड एंड अल्ट्रासाउंड. ठीक है. हमने ये देखा था कंप्रेशन किसे बोलते हैं? प्लेस ऑफ हायर डेंसिटी. रेयर फ्रैक्शन किसे बोलते हैं? प्लेस ऑफ लोअर डेंसिटी. ये जो है दिस इज कंप्रेशन और ये बीच में जो खुला खुला स्पेस है इट इज कॉल्ड एज रेयर फ्रैक्शन. C stands for compression here, R stands for रेयर फ्रैक्शन. इससे हमने क्या देखा कि लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स होते हैं बिकॉज ऑफ द पैरेलल प्रोपगेशन ऑफ वेव. ओके, जब वेव एक दूसरे के पैरेलल होते हैं इसे हम बोलते हैं लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स. ठीक है. और जब ये वेव्स परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे को ऐसे 90 डिग्री क्रॉस करते हैं वी कॉल इट एज अ ट्रांसवर्स वेव्स. इसके बाद हमने देखा था वेवलेंथ, साउंड, एम्पलीट्यूड, ये सारी चीजें देखी थी. फ्रीक्वेंसी किसे बोलते हैं वो देखा था. हाई और लो साउंड फ्रीक्वेंसी में आता है.
इसके बाद हमने देखा था वेलोसिटी ऑफ साउंड और वेलोसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, वेलोसिटी के 3 फॉर्मूला है। वन इज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूसरा है वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट वी आर फाइंडिंग आउट इन व्हाट प्रॉब्लम, we will use this formula accordingly. Now here, velocity is highest in the solid and least in the gases. Okay, हमने यहाँ पे velocity का टेबल पढ़ा है, अलग अलग स्टेट में सब्सटेंसेस की स्पीड कितनी होती है। Now velocity of the sound in the gaseous medium किस पे डिपेंड करती है, कितना टेम्परेचर है, कितनी डेंसिटी है, और उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है। ठीक है, साउंड के वेलोसिटी के ऊपर हम डिसाइड करते हैं वेदर द साउंड इज ऑडिबल, इंफ्रा और अल्ट्रा इन नेचर। ठीक है, जिसका हमने ये टेबल ऑलरेडी देख चुके हैं। कमिंग बैक हियर, सो इधर हमने देखा था कि बैट्स यूज अल्ट्रासोनिक साउंड वेव टू डिटेक्ट द ऑब्स्टेकल एंड दे कैन फ्लाई इजीली इन द नाइट। दे आर नॉक्टर्नल एनिमल्स। ठीक है, जो रात को ही घूमते हैं। नाउ यहाँ पे फॉर कम्युनिकेटिंग बिटवीन शिप्स एंड द सी, यूज ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड यूज होता है। टू जॉइन प्लास्टिक सर्फेसेस टुगेदर, अगेन अल्ट्रासोनिक साउंड। टू स्टेरिलाइज लिक्विड लाइक मिल्क बाय किलिंग बैक्टीरिया, अल्ट्रासोनिक साउंड यूज होता है। इकोकार्डियोग्राफी में भी अल्ट्रासोनिक होता है। इमेजेस टू ऑब्टेन ऑफ द इंटरनल ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, जिसे हम सोनोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, टू लोकेट द क्रैक एंड फॉल्ट इन द मेटल एंड टू क्लीन द इंट्रिकेट पार्ट ऑफ द मशीन, छोटे छोटे फाइन पार्ट जहाँ पे हमारे हाथ नहीं जाते हैं। ओके, इससे हमने देखा रिफ्लेक्शन होता है साउंड का। एको कहाँ से आता है, बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हमें एको सुनाई देता है। सो गुड एंड बैड रिफ्लेक्टर्स देखे थे हमने। फ्लैट सर्फेसेस आर गुड रिफ्लेक्टर्स एंड अनइवन सर्फेसेस आर बैड रिफ्लेक्टर। इसके ऊपर से हमने बीजापुर का एक ये देखा था, मॉन्यूमेंट देखा था, जहाँ पे एको होता है साउंड का। ठीक है, एक साउंड आपको बार बार सुनाई देता है। ओके, उसके बाद साउंड जब बार बार बहुत ज्यादा सुनाई दे, एक या दो बार छोड़ के कंटिन्यू सुनाई दे, हम उसको बोलते हैं रिवर्बरेशन। एको जो है रिवर्बरेशन हो जाता है, पर रिवर्बरेशन एको नहीं होता है। ठीक है, ये बार बार पटक पटक की आवाज आएगी एंड इट विल क्रिएट अ नॉइज। रिवर्बरेशन के बाद हमने देखा कि एक अल्ट्रासोनिक साउंड वेव की टेक्नोलॉजी है जिसे सोनार बोलते हैं, जिसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर होता है। और ये सोनार वेव्स क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल और रिसीव करके उसको डिकोड करते हैं, बिकॉज ये सोनार वेव्स जो है ह्यूमन ईयर को ऑडिबल नहीं होते। फिर हमने सोनार वेव से रिलेटेड सोनोग्राफी देखी, और सोनोग्राफी के बाद हमने ह्यूमन ईयर का वर्किंग देखा। ह्यूमन ईयर के 3 पार्ट होते हैं, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। ठीक है, इससे रिलेटेड हमने सॉल्व एग्जाम्पल देखे। सो फार इज दिस क्लियर? किसी को कुछ पूछना है? नो डाउट, with this we have completed the sound chapter. Yes, कुछ पूछना है किसी को? Okay, next time we will start with another chapter. All right, today we'll wind up here. Bye students, good night.